थ्री फोर्स मेंबर्स क्या है कि आप इन assumptions की हेल्प लेके अपने सपोर्ट रिएक्शंस को ज्यादा सिंपली जो है वो ज्यादा आराम से फाइंड कर सकते हैं अगर आपको इन 2 और 3 फोर्स मेंबर्स का इस्तेमाल आता हो। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि द सॉल्यूशंस टू सम इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स कैन बी सिंप्लीफाइड बाय रिकॉग्नाइजिंग मेंबर्स दैट आर सब्जेक्टेड टू ओनली 2 और 3 फोर्सेस। सबसे पहले अगर हम 2 फोर्स मेंबर की बात करें, काइंडली मुझे कंफर्म कर दें, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? कोई एक स्टूडेंट? Okay. Yes, sir. So two force member क्या होता है? A two force member is a member on which only two forces are being applied at 2 points. So a two force member has forces applied in only 2 points on that member. For example, the member on the top of this figure जिसमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर दो अदर फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, इट इज अ टू फोर्स मेंबर, क्योंकि इस पे 2 पॉइंट्स भी खाली फोर्स अप्लाई की जा रही हैं। तो टू फोर्स मेंबर की डेफिनेशन क्या है? इट इज सिंपली अ मेंबर ऑन विच forces are being applied at 2 different points, just like this member which is shown on the right hand side, on which FA and FB are being applied at points A and B respectively. Now if this two force member is in equilibrium, अगर इस two force member पे मैं equilibrium की condition apply करूं तो equilibrium की condition क्या कहती है कि summation F should be equal to 0, यानी ये अगर equilibrium में है तो it means कि ये दोनों forces FA और FB जो है they should be equal in magnitude, that is FA should be equal to FB and that should be equal to F, but opposite in direction to each other, isn't it? ऐसा ही है? जी sir. So in order to satisfy the first condition of equilibrium, both these forces should be equal to each other in magnitude but opposite in direction. Only then this summation F equal to 0 is going to be satisfied. Okay, what about the second condition of equilibrium, which says that the sum of all the moments acting at that member should also be equal to 0? वो किस सूरत में पॉसिबल हो सकता है? अगर तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगी तो दे आर गोइंग टू मेक अ कपल, isn't it? जी sir. So in order to satisfy the moment equation, it is a must that the line of action of these two forces should be same. That is, it should be along the line passing through point A to point B. So moment equilibrium equation requires that FA and FB share the same line of action, which can only be possible if they are directed along the line joining points A and B. In that case, either you take summation MA equal to 0 or summation MB equal to 0. दोनों सूरतों में moment balance आपकी जो है वो हो रही होगी. So for a two force member to be in equilibrium, the two forces acting on the member must have the same magnitude, act in opposite direction, and have the same line of action directing along the line joining those 2 points. I hope कि two force member और उसकी equilibrium हर एक को समझ आ गई होगी। जी सर, वो तो ठीक है सर, ये मेंबर हम वर्ड यूज कर रहे हैं, मेंबर का क्या मतलब है डेफिनेशन? just it is a rigid body. ठीक है, any rigid body on which forces are applied at 2 different points is basically termed as a two force member या two force rigid body. सही। ओके, सो अगर हम कहते हैं कि वो टू फोर्स मेंबर या टू फोर्स रिजिड बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो उसके लिए मस्ट है कि वो दोनों फोर्सेस जो है दे शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट टू ईच अदर, एंड द लाइन ऑफ एक्शन शुड बी सेम, दैट शुड बी पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट जिसके ऊपर वो फोर्सेस अप्लाई की जा रही हैं। ओके, सिमिलरली अगर हम 3 फोर्स मेंबर की बात करें तो एनी रिजिड बॉडी ऑन विच forces are being applied at 3 different points only, that particular rigid body is termed as a 3 force member. जिस तरह 2 force में 2 points पे अप्लाई होती थी, 3 force में 3 points के ऊपर अप्लाई की जाती हैं। Now अगर हम इस rigid body जो कि 3 force member है या 3 force rigid body है, इसकी equilibrium की बात करें तो इसके ऊपर भी condition वही है कि summation F should be equal to 0, that is the sum of all these 3 forces, vectorical sum of all these 3 forces should be equal to 0. In other words, there shouldn't be any unbalanced force acting on the rigid body. अब जब मैं मोमेंट इक्वेशन की बात करता हूं तो समेशन m should only be equal to 0 if all these 3 forces are basically concurrent, यानी ये तीनों फोर्सेस जो है they should be passing through the same point. अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके पास मोमेंट बैलेंस नहीं होगी for a 3 force rigid body. So for a 3 force rigid body it is going to be in equilibrium provided that all the 3 forces are concurrent at that point, so that you can apply summation mo equal to 0. I hope that this point is clear to all of you. जी सर। ठीक है, तो 2 और 3 फोर्स मेंबर की इन डेफिनेशंस को थोड़ा सा ध्यान में रखें, क्योंकि अगली जो हमने एग्जांपल सॉल्व करनी है उसमें हम थोड़ा सा इन डेफिनेशंस का इस्तेमाल करेंगे। इन डेफिनेशंस को यूज करके होता क्या है कि थोड़ी सी हमारी एनालिसिस जो है वो सिंपल हो जाती है और हम ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है वो सपोर्ट रिएक्शंस डिटरमिन कर सकते हैं अगर हम ये 2 फोर्स और 3 फोर्स मेंबर्स की डेफिनेशन को ध्यान में रखें। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल 5-13 देखें, आपको एक अदद लिवर दिखाया गया है जिसपे पॉइंट सी के ऊपर आप एक अदद फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 400 न्यूटन की।
So this lever ABC is pin supported at point A and connected to the short link BD. If the weight of the members are negligible, we need to determine the force exerted on the pin by this lever at A. यानी हम A के ऊपर कितना सपोर्ट रिएक्शन आ रहा है वो हमने डिटरमिन करना है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर मैं मेंबर BD को कंसीडर करूं तो मेंबर BD जो है वो 2 फोर्स मेंबर है 3 फोर्स मेंबर है? सर 2 फोर्स 2 फोर्स मेंबर है। इसके ऊपर एक अदद फोर्स पॉइंट बी पे अप्लाई कर रहे हैं। आप लिवर को जब खींचेंगे राइट की तरफ तो एक फोर्स पॉइंट डी पे भी अप्लाई होगी। सो इट इज बेसिकली अ 2 फोर्स मेंबर जिसमें 2 पॉइंट्स है, वन इज पॉइंट बी, द अदर वन इज पॉइंट डी, जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही हैं। हमारी डेफिनेशन क्या कहती है 2 फोर्स मेंबर की? ये जो फोर्सेस हैं पॉइंट बी और डी पे क्या होनी चाहिए ये फोर्सेस? सर ये सेम पॉइंट से मतलब एक ही यानी एक तो सबसे पहली बात उनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है दे शुड बी पासिंग थ्रू द पॉइंट थ्रू द लाइन जॉइनिंग बाय पॉइंट्स बी एंड डी, ऐसा ही है। मैग्नीट्यूड वाइज क्या इनका कोई रिलेशन है दोनों फोर्सेस का? मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन ऑपोजिट हो। मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन ऑपोजिट हो, इट मींस कि मैं अगर इसको और इसको F कह लेता हूं तभी मेरी फोर्स और मोमेंट इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, इजंट इट? जी सर। यस सर। So whenever we are considering a two force member, then both the forces should be equal in magnitude, opposite to each other, and the line of action should be same. That is the line joining points B and point D in this case. So अब क्या आप इस टू फोर्स मेंबर को जब इक्विलिब्रियम में कहें तो व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड, यानी इसको मैं F के तौर पे कंसीडर कर सकता हूं। एंगल क्या होगा इस फोर्स का? नो आइडिया। थोड़ा सा फिगर ज्योमेट्री और से देखें, आइडिया हो जाएगा। लाइन जॉइनिंग बी एंड डी, ये लाइन कितने एंगल पे है? सर 45 पे। 45। अगर ये 0.2 है, ये 0.2 है, so this angle should be 45 degrees as well. It means कि मेरे पास ये F जो है, it would be acting at an angle of 45 degrees, isn't it? जी सर। यहाँ तक हर एक को समझ आ गया है या किसी का कोई डाउट है इस फिगर को? लेकिन सर हर केस में तो इस तरह नहीं होगा ना फिर। हर केस में जो भी टू फोर्स मेंबर है उस पे ये अप्लाई होगी कंडीशन। 45 जाहिर है वो वैलिड नहीं होगा, वो तो डिपेंड करेगा किस डायमेंशंस पे आपके ये लिंक की है, लेकिन ये कंडीशंस वैलिड होंगी कि फोर्सेस जो हैं वो इक्वल होंगी, ऑपोजिट होंगी और लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा। सर हम cos थीटा sin थीटा के फार्मूले से मेजर कर लेंगे, ठीक है सर। चलिए, हाँ, यानी अगर आपको कुछ ना कुछ दिया होगा तो आप थीटा मेजर कर सकते हैं। अगर आपको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस गिवन होगा तो आराम से आप थीटा जो है वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है? यस सर, ठीक है। चलें, सो अब मैं अगर लिवर CBA की फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, इसके ऊपर एक अदद ये मेरे पास अप्लाइड फोर्स है जो कि 400 न्यूटन की है, ठीक है? और कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी जब मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा? सर ए के ऊपर भी परपेंडिकुलर फोर्स होगी। पॉइंट ए के ऊपर पिन जॉइंट है, पिन जॉइंट पे कौन सी फोर्स आती है? सर एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे दो फोर्सेस आती हैं। ठीक है, दो फोर्सेस आती हैं, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे, ऐसे ही है? यस सर। चलें, मुझे एक और बात बताएं, दिस लिवर ABC जो है, इज इट अ टू फोर्स मेंबर और अ थ्री फोर्स मेंबर? थ्री फोर्स मेंबर। सर थ्री फोर्स नहीं होगा। कैसे आपने जज किया थ्री फोर्स मेंबर सर है? बी के ऊपर भी फोर्स सर बी के ऊपर भी तो फोर्स लग गई। बिल्कुल ठीक है, यानी इस पे 3 पॉइंट पे फोर्स लग रही है। एक पॉइंट सी पे 400 न्यूटन की फोर्स है, पॉइंट बी के ऊपर कौन सी फोर्स है? ये F जो आपने निकाली है इससे पहले लेफ्ट साइड की फिगर पे, सर F cos 45। यानी F लग रही है, वो cos साइन तो छोड़ के बेसिकली F फोर्स अप्लाई हो रही है। यस सर। ठीक है, और पॉइंट A के ऊपर पिन जॉइंट होने की वजह से आपके पास एक अदद फोर्स आएगी A या FA कह लें, जो कि किसका कॉम्बिनेशन होगा, वेक्टर सम होगा, वो AX और AY। AX और AY का। सो लिवर ABC इज बेसिकली अ थ्री फोर्स मेंबर जिसके ऊपर एक अदद फोर्स अप्लाई हो रही है व्हिच इज दिस फोर्स FA, एक अदद फोर्स अप्लाई हो रही है व्हिच इज दिस फोर्स जो कि हमने F का नाम दिया है पॉइंट B के ऊपर, और एक अदद 400 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है, ऐसा ही है? जी सर। कोई क्वेश्चन आपका ये F के डायरेक्शन के हवाले से है? सर ये आपने क्यों कर दिया इस तरह? उल्टा क्यों कर दिया? सर आपने यस सर। सर ये पॉजिटिव नहीं लेना चाहिए। पहले मैं आपसे सवाल करता हूँ, किसी को अगर समझ आया है मैंने डायरेक्शन इसका उल्टा क्यों कर दिया? सर ये टुवर्ड्स द पिन आपने किया। देखें,
जब मैंने इस टू फोर्स मेंबर को कंसीडर किया था तो मैंने इसको किस फोर्स के तौर पे ड्रॉ किया था? सर दोनों उस तरफ हैं तो एक फोर्स इस तरफ होनी होगी ऑपोजिट साइड पे कि इक्विलिब्रियम मेंटेन। नहीं देखिए, आपने जब इसको बीडी को कंसीडर किया था, यू हैव ड्रॉन दिस फोर्स एफ अवे फ्रॉम द लिंक, ऐसे ही है? तो ये कौन सी फोर्स होती है? ये हमें डी पॉइंट से मिली थी ना इस वजह से। टेंसाइल फोर्स है ना, जो कि अवे फ्रॉम द लिंक ड्रॉ की जाती है। जब आप इसी फोर्स को कंसीडर करेंगे फॉर दिस लीवर ए बी सी, तो टेंसाइल फोर्स ही रहेगी, वो दूसरी डायरेक्शन में तो नहीं आ जाएगी। तो आपने उसके डायरेक्शन को कंसिस्टेंट रखना है और अवे फ्रॉम दैट लीवर ए बी सी जो है वो ड्रॉ करना है। समझ गए ये बात? नहीं सर, एक बार रिपीट कीजिएगा ये बात। चलें, मैंने बेसिकली कहा ये कि जब मैं मेंबर बीडी को कंसीडर कर रहा था तो मैंने इसको अज्यूम किया कि इट इज एक्टिंग अवे फ्रॉम दैट मेंबर बीडी, सो इट इज बेसिकली अ टेंसाइल फोर्स। अब जब मैं मेंबर एबीसी को कंसीडर कर रहा हूं तो पॉइंट बी इज अ कॉमन पॉइंट, तो ये रहेगी तो टेंसाइल फोर्स ही ना। तो टेंसाइल फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम दैट बॉडी जो है वो ड्रॉ की जाती है, इसीलिए मैंने जब एबीसी की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ की तो इसको अवे फ्रॉम पॉइंट बी जो है वो ड्रॉ कर दी है। समझ गए? अगर इन केस के नहीं भी समझे, ये अननोन फोर्स है, सो अननोन फोर्स का डायरेक्शन में किसी भी एक डायरेक्शन में अज्यूम कर सकता हूं, इजंट इट? जी सर। जब मैं Yes, सॉल्व sir. करूंगा तो ऑटोमेटिकली इसका डायरेक्शन मुझे सही मिल जाएगा। ठीक है, सर टेंसाइल फोर्स ये लिंक्स में भी हो सकती है, मेटल वाली चीजों में भी हम कंसीडर करते हैं कि इनमें भी देखिए हमने एक फोर्स को अवे ड्रॉ कर लिया तो हम उसको अवे ही अज्यूम करेंगे। अगर हम सॉल्व करते हैं उसका साइन नेगेटिव आ जाता है तो हम अपनी अजम्पशन को रिवर्स कर देंगे। अच्छा, अब मुझे एक और बात बताएं जरा सोच के। इफ दिस लीवर ABC is a three force member, then these three forces FA, F and 400 न्यूटन, क्या कंडीशन है थ्री फोर्स मेंबर की इक्विलिब्रियम की? सर ये एक ही पॉइंट पे पास करेंगे। दे शुड बी कंकरेंट, ऐसे ही है? जी तो जी सर। कंकरेंट के लिए क्या होगा कि आप इसकी लाइन एक्सटेंड करें, इसकी लाइन एक्सटेंड करें, इसकी लाइन एक्सटेंड करें, दे ऑल थ्री आर गोइंग टू मीट एट पॉइंट O, isn't it? जी सर। अच्छा, अब मैं ये कर क्यों रहा हूं? ये एंगल तो मुझे पता है 45 डिग्रीज है जो फोर्स F का है। डू आई नो दिस एंगल थीटा? नो सर। कैन आई डिटरमिन दिस एंगल थीटा? पता नहीं सर। सोचें कुछ थोड़ा सा किया जा सकता है। सर आप कर ही लेंगे सर। सर ये 45 के लिए होगा? नहीं, अगर दोनों 45 में फिर तो ये पैरेलल फोर्सेस हो जाएंगी। तो इसमें आपका y कंपोनेंट क्या होगा? x कंपोनेंट तो आपका 0.1 हो गया ना। सर 45 से बड़ा होगा ये मुझे पता है और नहीं। ओके, अब कुछ चीजें समझ आई? यस सर, वो y ठीक है। देखें, आपके पास ये 45 है, इट मींस के ये 0.5 है अगर, तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस भी 0.5 ही होगा, ऐसे ही है अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करूं। 45 का मतलब क्या होता है कि x और y बराबर है, सो दिस 0.5 एंड 0.5 शुड बी इक्वल। हमें ये वाला दिया था तो हमने जज कर लिया कि x भी जो है वो 0.5 होगा, ऐसे ही है? यस सर। ओके, नाउ यू आर गोइंग टू कंसीडर दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल जो कि मैं ब्लू से शो कर रहा हूं। थीटा डिटरमिन कर सकते हैं आप यूजिंग दिस फॉर्मूला? यस सर। थीटा क्या होगा? tan इनवर्स दिस एंड दिस, ये डिस्टेंस दो आपको चाहिए y ओवर x। सर 0.7 और 0.4 क्योंकि वो 0.1 में से माइनस हो That's और correct. 0.5 में से 0.1 माइनस आपको हो जाए। थीटा मिल गया विच इज 60.3। अब बड़ा आसान सवाल हो गया, आप समेशन fx इक्वल टू 0 करें, आपको fa और f की टर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगी। समेशन fy इक्वल टू 0 करें, अगेन fa और f की टर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगी। दो इक्वेशंस, दो अननोन, साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, आपको fa और f दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपने देख लिया, अगर टू फोर्स और थ्री फोर्स वाली डेफिनेशन को इस्तेमाल किया तो मोमेंट की जरूरत पड़ी नहीं आपको। आपने सिंपल fx fy और इनकी मदद से दोनों अननोन f और fa की वैल्यू जो है वो आप डिटरमिन कर सकते हैं। सर अगर ये हॉरिजॉन्टल 0.5 मीटर आप एक्सप्लेन कर देंगे तो फिर से ये हमें किस तरह मिला? जी, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा गौर से देखें। आपने जज क्या किया था कि ये f किस डायरेक्शन में एक्ट करता है? 45 डिग्रीज पे, बिकॉज ऑफ द 0.2 एंड 0.2। इट मींस कि ये वाली जो लाइन है ये 45 डिग्रीज पे है, ऐसे ही है? बिल्कुल। 45 डिग्रीज का मतलब क्या होता है कि जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस होगा। सर ये मतलब है? यार 45 डिग्रीज का मतलब क्या है? 45 डिग्रीज एंगल कब आता है? जब ये ठीक है डिस्टेंस सर, ठीक है सर, वही बराबर वही स्क्वायर अज्यूम कर लिया, ठीक है सर। तो ये 0.5 गिवन है आपको, तो ऑटोमेटिकली ये भी आपको 0.5 मिल जाएगा। सही।
ठीक है। तो बाकी कहानी थीटा के लिए सिंपल है, आपने इस ट्रायंगल को कंसीडर किया, ये डिस्टेंस 0.5 प्लस 0.2 0.7 गिवन था, ये आपके पास 0.4 गिवन है, तो आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। However, चलें, अगर इन केस पे आपको ये 2 फोर्स या 3 फोर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, तो देन यू कैन अप्लाई द कन्वेंशनल summation fx equal to 0, summation fy equal to 0 and summation ma equal to 0 as well on this particular case। आपको अगेन उस सूरत में भी सोल्यूशन सेम मिलेगा। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाह रहे, 2 फोर्स 3 फोर्स नहीं जज करना चाह रहे, फिर आप क्या करेंगे, आप उसी तरह ax और ay कंसीडर करें, ये f आ जाएगा, 3 अननोन्स हैं, आप समेशन fx समेशन fy समेशन ma लगाएं, आपको इन तीनों अननोन्स की कन्वेंशनल तरीके से भी वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी सर। तो अगर आपको ये 2 फोर्स और 3 फोर्स की मेंबर्स की डेफिनेशन में कोई इशू है, आप चाहें तो इसको कन्वेंशनल तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। अगर आप कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करते तो आपकी जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो क्या बन जाती, आप इस लिवर को कंसीडर करते, आपकी फ्री बॉडी डायग्राम में थोड़ा सा चेंज ही आना था, आप फिर एफ ए और थीटा कंसीडर ना करते, आप इसको ए एक्स और ए वाई ले लेते, ठीक है, और कन्वेंशनल इक्वेशन के साथ सॉल्व करते, तब भी आपको ax और ay की वैल्यू मिल जानी थी। वहां से आप a की वैल्यू निकाल सकते थे बाय ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर होल अंडर रूट, वो आपकी एग्जैक्टली यही आनी थी, और वहां से अगर कहा जाता तो थीटा भी निकाल सकते थे, वो आपको एग्जैक्टली यही 60.3 मिलना था। सर ये Is this पॉइंट बी को हम किस तरह सर वो से अलग करते हैं सर? देखिए, पॉइंट बी को हम अलग नहीं कर रहे, पॉइंट बी पे तो हमने फोर्स निकाल ली है, एक फोर्स एफ अननोन है जो कि 45 डिग्रीज के ऊपर एक्ट कर रही है, तो आपके अननोन्स कितने हो जाते, एफ ax ay, तीन अननोन हो जाता, इक्वेशन भी तीन थी, तीन अननोन तीन इक्वेशंस को आप सॉल्व करते तो आपका सपोर्ट रिएक्शन ये तीनों निकल आने थे, ठीक है। ओके सर। सर मतलब ये 2 फोर्स 3 फोर्स बेसिकली एक एक्स्ट्रा टूल है सॉल्व करने का। एक्स्ट्रा टूल है जो कि आपकी एनालिसिस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि मैं पहले मेथड में ज्यादा कन्वीनियंट फील करता हूं, तो आप चाहें तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं और कन्वेंशनल इक्वेशन के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। एज अ नॉन सेपरेट होमवर्क काइंडली कोशिश करें इसको कन्वेंशनल इक्वेशन के साथ सॉल्व करने की, ठीक है। तो सर आप किसी अपने असाइनमेंट या टेस्ट या एग्जाम में कभी हमें रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि इसे 2 फोर्स मैं रेस्ट्रिक्ट नहीं करूंगा, जो आपके लिए ज्यादा फिजिबल चीज होगी आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस एग्जांपल 13? यस सर, कोई सवाल तो सर। जी पूछें। ये फोर्स ऐसे है और नॉर्मल फोर्स ऐसे है, कैसे अज्यूम करेंगे ये दोनों पर्टिकुलर एंगल्स पे आ रही है? एफ ए और दूसरी कौन सी आप बात कर रहे हैं? नॉर्मल है बी पे जो एक्ट कर रही है। अच्छा देखिए, बी वाला तो एफ हमें नोन है, अभी जिस तरह हमने बात की कि बी वाली जो फोर्स है इट इज गोइंग टू एक्ट इन द डायरेक्शन जो कि लाइन बी से डी को ज्वाइन कर रही है, ठीक है, बिकॉज इट इज अ 2 फोर्स मेंबर, तो डेफिनेटली ये जो फोर्स है जो पॉइंट बी पे आएगी वो इसी लाइन के अलोंग आएगी, ओनली देन दिस मेंबर इज गोइंग टू बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो एफ की लाइन हमें पता है कि इट इज गोइंग टू बी एट 45 डिग्रीज, ax और ay हमने कन्वेंशनल तरीके से लिख लिया, दिस इज ax दिस इज ay, हमने ये कन्वेंशनल इक्वेशंस अप्लाई की, हमें ax ay और f तीनों वैल्यूज जो है वो मिल गई। सपोज आपने f को इस डायरेक्शन में लिया होता तो ऑटोमेटिकली जब आप ये अप्लाई करते f की वैल्यू आपको नेगेटिव मिल जाती, जो कि इंडिकेट करती कि आपका डायरेक्शन जो है वो f का रिवर्स है, ठीक है। लेकिन हम आप तो कन्वेक्टिव मेथड से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम फर्स्ट मेथड से बात करें, देखिए मैं सेकंड स्टेप के लिए कह रहा हूँ कि कन्वेंशनल इस्तेमाल कर लें। फर्स्ट स्टेप तो मुझे पता है कि 2 फोर्स मेंबर है, इस पे जो फोर्स एक्ट करेगी वो हर हाल में बी से डी की तरफ एक्ट करेगी। अदरवाइज देखें, अगर मैं एफ को भी कहता हूँ कि अननोन डायरेक्शन में है, तो फिर तो मेरे पास 4 अननोन हो जाएंगे, यानी अगर मैं थीटा नहीं फाइंड कर सकता, इसको मैं लेता हूँ थीटा, तो ये तो फिर 4 अननोन हो गए, ए एक्स ए वाई एफ थीटा, इक्वेशन 3 है, 4 अननोन हम फाइंड ही नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो जरूरी है कि स्टेप 1 में हम 2 फोर्स मेंबर तो कंसीडर करके एफ का डायरेक्शन निकाल लें, उसके बाद फिर हम कन्वेंशनल इक्वेशन जो है वो अप्लाई करें। लेकिन इसका मतलब कि आपने एफ ए की अजम्पशन ली थी जब आप सेकंड स्टेप कर रहे थे। एफ ए की जो अजम्पशन थी, बेसिकली एफ ए वाज द रिजल्टेंट ऑफ ए एक्स एंड ए वाई, जो अगर कन्वेंशनल में यूज कर रहा हूं तो ए एक्स ए वाई के तौर पे यूज कर लूंगा, अदरवाइज मैं चाहूं तो इसको एफ ए के तौर पे लेके 3 फोर्स मेंबर वाली डेफिनेशन कर सकता हूं। जी एनी अदर क्वेश्चन? चलिए अब हम कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम करते हैं, और मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कराऊंगा, कुछ बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह ये 5-26 है और 5-26 आपके लिए मैं एज होमवर्क के तौर पे आपको असाइनमेंट के तौर पे दूंगा। हम मूव कर जाते हैं आखिरी 2 प्रॉब्लम पे, 5-38 और 5 जो है इससे आगे 39 है या 40 है। 2 एक्सरसाइज के प्रॉब्लम करते हैं ताकि थोड़ा सा आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो। आई होप कि 5-38 वाली स्लाइड विजिबल है तमाम लोगों को।
Yes, sir. पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखते हैं। स्प्रिंग CD remains in the horizontal position at all times due to the roller at D। यानी आपके पास ये जो रिजिड लिंक ABC है, ये स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, जो कि हर वक्त हॉरिजॉन्टल रहता है। इसका क्या मतलब है कि जब आप स्प्रिंग फोर्स को मॉडल करेंगे तो किस डायरेक्शन में करेंगे? हॉरिजॉन्टली करेंगे। हॉरिजॉन्टली करेंगे। इफ द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, अब इसको समझने की कोशिश करें। जब थीटा 0 होता है, ये आपको थीटा गिवन है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा अगर 0 होता है तो ये ABC किस ओरिएंटेशन पे होगा? इसकी ओरिएंटेशन ये होगी, isn't it, when theta is equal to 0? Yes, sir. So when theta is equal to 0, the spring is unstretched and the bracket, ये जो ABC bracket है, it achieves its equilibrium position when theta is equal to 30। यानी जब लाइन AC 30 डिग्रीज रोटेट कर जाए तो इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाती है इस ब्रैकेट की। We need to determine the stiffness of the spring and the horizontal and vertical components of the reaction at pin A। पिन A जो है या A पॉइंट जो है उसके ऊपर पिन कनेक्शन हुआ हुआ है। चलें, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको शो की गई है व्हेन दिस थीटा इज इक्वल टू 30। आपके पास दो अदर रिएक्शन फोर्सेस आ रही हैं पॉइंट ए पे, जिसको हमने AX और AY कहा है। सो लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्रैकेट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। आपके पास ये AX आ गई, आपके पास AY आ गई। आई होप कि ये AX AY हर एक को क्लियर है। एक अदद अप्लाइड फोर्स आ गई है 300 न्यूटन की। और क्या आना चाहिए इस फ्री बॉडी डायग्राम पे? सर वेट तो नेग्लेक्टेड है ना, तो एक टेंशन Sir, फोर्स होगी। spring force. स्प्रिंग फोर्स आएगी। तो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स द लेफ्ट। यस। ठीक है, तो ये स्प्रिंग फोर्स हमने जो है वो ड्रॉ कर दी है अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस टुवर्ड्स द लेफ्ट। सो इज आवर फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट? जी सर। चलें, कैन यू फाइंड द स्ट्रेच इन दिस स्प्रिंग? बिकॉज आपको स्प्रिंग फोर्स की जरूरत पड़ेगी। स्प्रिंग की स्ट्रेच को मैं x से डिनोट करता हूं। ये कितनी होगी फ्रॉम इट्स पोजीशन जो कि आपको ये शो की गई है? ये आपकी वो ओरिजिनल पोजीशन थी ना जब थीटा 0 था। तो कितना एक स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया होगा आपके ख्याल में? 0.45। यार ये 0.45 कहां से आए? अच्छा नहीं सर, वो नहीं होगा, सॉरी सर। चलिए मैं दोनों पोजीशन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ Sir, ताकि ज्यादा आपको नहीं हुआ समझ- सर, कम ही हुआ। देखिए, ये थीटा इक्वल टू 0 वाली पोजीशन थी इसकी ब्रैकेट की। ये ब्लू से नजर आ रही है एक को? ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, तो यहां से यहां तक स्प्रिंग की स्ट्रेच कितनी है? साइन थीटा। ये थीटा आपको गिवन है 30 डिग्रीज। तो सर साइन थीटा आएगा। साइन थीटा आएगा किसके साथ? इस लेंथ के साथ, isn't it? बिकॉज यस सर। दिस लेंथ Yes, इज sir. 0.6, तो ये चीज बन जाएगी 0.6 cos 30 और ये चीज बन जाएगी 0.6 sin 30, isn't it? समझ गए हर एक कि नहीं समझे? जी सर। ओके, सो इट मींस कि ये x कितना होगा? अभी जिस तरह आपने बताया, इट इज गोइंग टू बी 0.6 sin of 30, जो कि अच्छा इसको दोबारा बता देते हैं। देखिए, आपको पोजीशन जो ओरिजिनल फिगर विजिबल है येलो से, मैंने एक पोजीशन ड्रॉ की है जो कि स्प्रिंग की अनस्ट्रेच पोजीशन को रिप्रेजेंट करे। जब स्प्रिंग अनस्ट्रेच होगा तो ब्रैकेट वर्टिकल होगा, थीटा 0 है। ठीक है, यस सर। उसके बाद आप एक अदद फोर्स अप्लाई करते हैं और ये ब्रैकेट अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन कर लेता है व्हेन दिस थीटा इज 30 डिग्रीज। यस सर। तो स्प्रिंग की स्ट्रेच कितनी होगी? ये लेंथ आपको गिवन है विच इज 0.6, थीटा आपको गिवन है, तो आप ये स्प्रिंग में जो स्ट्रेच है ये निकाल सकते हैं। इट इज बेसिकली 0.6 साइन ऑफ 30। आप क्लियर हुआ कुछ? यस सर। ओके, स्प्रिंग फोर्स क्या होती है? सर kx। के तो अननोन है लेकिन एक्स हमने फाइंड कर लिया है, तो क्या मैं इसको 0.3 के के तौर पे लिख सकता हूँ स्प्रिंग फोर्स को? यस सर, लिख सकते हैं। चलिए, अब मुझे जरा एक बात बताएं कि किस पॉइंट के अबाउट में मोमेंट लूंगा।
जरा मैं फ्री बॉडी डायग्राम को क्लियर कट बना लेता हूँ ताकि आपके लिए मूवमेंट लेना आसान हो जाए। मेरे पास सर ये दो ये बिल्कुल ही सर, प्रॉब्लम point एक है। नहीं सर, हम ना वो सी के इर्द गिर्द ना लेते के फाइंड नहीं करना पड़ेगा हमें। देखिए के ही तो हमें फाइंड करने हैं, हम के से किस हद तक बच सकते हैं, वी हैव टू डिटरमिन के। फिर सर एक गिर्द ले लेंगे ठीक पॉइंट है, एक के। अलोंग लेने से पॉजिटिव समेशन एम ए के लिए अलोंग लेने से फायदा क्या होगा? सर वो ax ay दोनों जीरो हो जाएंगे। ax ay दोनों जीरो हो गई। ओके, तो ए के अलोंग मोमेंट एक तो स्प्रिंग फोर्स बना रही होगी, इसका मोमेंट आर्म कितना बनेगा? सर 0.6 cos नहीं सर cos 30 आई थिंक। जी, तो स्प्रिंग फोर्स जो मोमेंट बनाएगी वो 0.6 cos 30 मोमेंट आर्म होगा। क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? सर काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज मैंने पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, व्हाट अबाउट द मोमेंट ड्यू टू फोर्स F, ये कितनी मोमेंट बनाएगी? मोमेंट आर्म क्या होगा F का? सो ये डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट जो ए से बी तक हो गई, ये मोमेंट आर्म होगा जो मैंने ब्लैक से बनाया है, होप ये को विजिबल है। ए बी इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं, दिस वन एंड दिस वन। ये डिस्टेंस कितना है? 0.6 sin 30 जो पहला डिस्टेंस है। सर हम 0.45 स्क्वायर प्लस 0 बाय हाइपोटेनस थ्योरम नहीं यूज कर सकते? आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, अगर आप उसको नहीं, पाइथागोरस थ्योरम आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? सर 0.45 0.6 तो वो दोनों का ऐड कर देंगे और पता है। आपको क्या डिस्टेंस मिलेगा? वो तो ए बी मिल जाएगा। इज इट परपेंडिकुलर डिस्टेंस? है नहीं सर, परपेंडिकुलर है। ये देखो, आप तो जिस डिस्टेंस की बात कर रहे हो वो ये वाला डिस्टेंस नहीं है। ठीक सर, ठीक। मुझे ये डिस्टेंस तो नहीं चाहिए, मुझे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये वाला डिस्टेंस जो कि मैंने अभी निकाला है 0.6 sin 30 प्लस ये वाला डिस्टेंस, इजंट इट? ये कितना होगा? सर ACB जो 90 डिग्री है, जी बिल्कुल, ए सी बी 90 डिग्री। फिर वो 30 हो जाएगा बी का एंगल। देखिए ये 30 है तो ये 60 हो गया, अकॉर्डिंगली ये आपको 30 मिल जाएगा, ऐसे ही है। यस सर, तो फिर 0.45 cos 30 हो जाएगा। 0.45 cos 30 हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो टोटल डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ का क्या बना? 0.6 sin 30 प्लस 0.45 cos of 30. Is it clear to all of you? जी सर। Clockwise, counter clockwise? क्लॉकवाइज। Clockwise. So I'm going to include it with a negative sign. Unknown क्या है यहाँ इस पूरी इक्वेशन में? स्प्रिंग फोर्स। Spring force जो कि 0.3 k के बराबर है. So once you solve it, the value of k would comes out to be 1.327 kilonewton per meter. Is this point clear to all of you? जी सर। So once you have found that spring force, फिर तो आपके पास conventional equations fx और fy apply करेंगे and you can get the values of ax and ay accordingly. So I hope कि इसमें सारी कहानी जो थी वो एक ये स्प्रिंग की स्ट्रेच को समझने की थी कि स्प्रिंग अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन और अनस्ट्रेच पोजीशन में कितना एक डिफॉर्म हुआ है, और दूसरा आपने मोमेंट की इक्वेशन जब अप्लाई करनी है तो ये वाला जो डिस्टेंस है f का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये किस तरह जो है वो डिटरमिन करना है। ये दो चीजें अगर समझ आ जाएं तो ये प्रॉब्लम जो है वो आराम से हल हो जाता है। सर इसे हम 3 फोर्स मेंबर से सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास तीन फोर्सेस आ रही हैं। ऑल दीज थ्री फोर्सेस शुड बी कंकरेंट। इट मींस कि अगर एक फोर्स इस तरह आ रही है, एक इस तरह आ रही है, तो आप ये वाली फोर्स भी इसी पॉइंट में से पास होनी चाहिए। तो आप थ्री फोर्स के तौर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, एनी अदर थिंग जो कि आप पूछना चाहें? शैल वी मूव ऑन टू द फाइनल प्रॉब्लम ऑफ दिस टॉपिक, ताकि कल की क्लास में फिर हम स्टार्ट कर दें 3 डायमेंशन का इक्विलिब्रियम। जी सर। चलिए, मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आखिरी ये दो प्रॉब्लम थे ना, पिछला वाला और ये वाला, ये दोनों काफी डिफिकल्ट प्रॉब्लम थे। तो अगर आप ये समझ लेते हैं तो उम्मीद है कि आप
तमाम प्रॉब्लम्स आराम से समझ के जो है वो कर सकते हैं, कोई इशू आपको आना नहीं चाहिए किसी भी प्रॉब्लम में। ओके, आपको एक अदद बेल क्रैंक लीवर जो है वो शो किया गया, विच इज दिस BAD, दिस इज अ बेल क्रैंक लीवर। सो इफ स्प्रिंग BC इज अनस्ट्रेच व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इट मींस के जब ये बेल क्रैंक लीवर इस पोजीशन पे है तो थीटा 0 होता है और ये स्प्रिंग जो है वो अनस्ट्रेच है। आप करते क्या है कि एक अदद फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑफ मैग्नीट्यूड F परपेंडिकुलर टू दिस बेल क्रैंक लीवर AD। मैं सवाल दोबारा पढ़ लेता हूं ताकि आप पहले सवाल समझ लें। इफ द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज एंड द बेल crank achieves its equilibrium position when theta is equal to 15 degrees, we need to determine the force F applied perpendicular to the segment AD and the horizontal and vertical components of the pin joint at A. Spring remains in horizontal position at all times due to the roller. वही है बात है कि स्प्रिंग जो है हमेशा horizontal रहता है, इट मींस कि आपके पास जो स्प्रिंग फोर्स आएगी वो हमेशा horizontal आएगी। सबसे पहली बात, उसी तरह क्या किसी तरह आप स्प्रिंग की स्ट्रेच डिटरमिन कर सकते हैं? Is there any method possible जिसकी मदद से आप स्प्रिंग की स्ट्रेच डिटरमिन कर सकें? Anyone volunteer जो बताना चाहे? सर ये जो एंगल है ये 150 है जो, तो सर जी। इसमें 30 ऐड होगा ना, क्योंकि ये अगर वो प्रॉपर Line है। सर्कल अगर बने। जस्ट अ मिनट, एक मिनट यहीं रुकें। अगर ये स्प्रिंग जो है अनस्ट्रेच होगा तो जो बेल क्रैंक लीवर की पोजीशन है वो कुछ इस तरह की बन रही है कि आपके पास ये एंगल तो 150 है और ये एंगल जिस तरह भी आप में से एक ने जिक्र किया ये एंगल 30 आ जाता है। ठीक है, तो ये बात तो समझ आ गई है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 ये स्प्रिंग अनस्ट्रेच है और आपके पास जो बेल क्रैंक लीवर है वो इस पोजीशन पे लाई करता है। जी, अब आगे बताएं, आप क्या बताना चाह रहे थे? आपने किया क्या कि एक अदद फोर्स अप्लाई की जिसके नतीजे में 9:15 तो नहीं होगा ना? चलिए एक थोड़ा सा सुन लें। आपने एक अदद फोर्स अप्लाई की जिसके नतीजे में ये लिवर थीटा इक्वल टू 15 डिग्रीज पे रोटेट कर गया और इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन हो गई, जिसके बाद आपकी ये रेड पोजीशन अचीव हो गई है बेल क्रैंक लिवर की। ऐसे ही है, ये एंगल तो Yes, फिर भी 150 था। तो स्ट्रेच कितनी हुई एक तरह से? ये एक्स की वैल्यू होगी ना, जितना स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा है अपनी अनस्ट्रेच पोजीशन से। यस सर। यहां तक ये फिगर हर एक को क्लियर है? ब्लू और रेड पोजीशन जो दोनों शो की गई है, ब्लू पोजीशन इज बेसिकली when theta is equal to 0 and the spring is unstretched. Red position is the equilibrium position when theta is equal to 15 degrees. Now can you find the value of x? सर 300 मिलीमीटर into cos 15। ये पॉइंट A, B और AB डैश, AB की लेंथ कितनी है? 0.3 मीटर, ऐसे ही है? यस सर। अच्छा, ब्लू वाली पोजीशन में तो मुझे एंगल पता है, AB 30 डिग्रीज बना रहा है। व्हाट अबाउट द एंगल व्हिच दिस रेड पोजीशन इज मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू द x एक्सिस? ये एंगल कितना होगा? सर ये 15 होगा। देखिए, अगर ये 15 है तो ये वाला एंगल भी 15 ही होगा, isn't it? यस सर। तो अच्छा। सर ये 0.3 into sin 15 आ जाएगी स्ट्रेच। जी, स्ट्रेच आपके पास बेसिकली जो आएगी वो आपके पास आएगी 0.3 cos 30 minus 0.3 cos 45, isn't it? 0.3 cos 30 क्या है? वो ये वाली लेंथ है, उसमें से 0.3 cos 45 निकाल देंगे तो आपको एक तरह से ये स्ट्रेच मिल जाएगी। ये फिगर मैंने यहाँ दोबारा गौर से बना दी है, इसको एक नजर गौर से देखें। आपके पास जो स्ट्रेच है जिसको हम x कह रहे हैं, इट इज बेसिकली 0.3 cos 30 जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है माइनस 0.3 cos 45। सो बेसिकली ये जो चीज है ये आपको x मिल जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, सो वंस यू हैव गॉट दैट x you can find out the spring force as kx। k की वैल्यू आपको गिवन है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, सो आपके पास स्प्रिंग फोर्स 95.4 न्यूटन आ जाएगी। नाउ ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ax ay स्प्रिंग फोर्स, आपके पास तीन इक्वेशंस हैं, समेशन m, समेशन fx, समेशन fy। तीनों अननोन्स जो है वो आप डिटरमिन कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द कन्वेंशनल सेट ऑफ इक्वेशंस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगेन सारा खेल जो है वो इस x को समझने का था। वंस यू हैव डिटरमिन दिस x, उसके बाद तो आपने कन्वेंशनल इक्वेशन इस्तेमाल करनी है जिसमें आप मोमेंट लेते हैं पॉइंट A के अबाउट और fx और fy के अलोंग जो है वो आप फोर्स समेशन ले रहे होते हैं। काइंडली कोई पॉइंट ना समझ आए हो तो अभी पूछ सकते हैं।
सर थीटा 15 कैसे आया था? थीटा 15 कैसे आया? ये वाले थीटा की बात कर रहे हैं। Yes, sir. देखिए इसमें क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जब ये थीटा 15 होता है तो ये वेल क्रैंक अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन कर लेता है। तो हमने तो सारी एनालिसिस इक्विलिब्रियम पे करनी है ना, तो इसलिए हमने इसको ये थीटा जो है वो 15, यानी आप इस लीवर पे फोर्स अप्लाई करके थीटा अगर 15 करते हैं तो ये एक ही रिजिड बॉडी है ना। अगर ये 15 ये वाली चीज मूव होगी तो ये वाली चीज भी तो 15 ही मूव होगी। ठीक है, चलें, सो वी आर गोइंग टू स्टॉप एट दिस पॉइंट।